Namaste everyone. We are here to share the journey of Abdul Rahman, a 10-year-old boy who also has Down syndrome. When he was born, he had various complications and comorbidities, especially a hole in the heart and various other issues. The family was not given much hope from the hospitals or the doctors about his survival or about his improvement medically and otherwise. This is when the family was very dejected, and when somebody in the family referred them to Dr. Raghavan as a last resort to see if he could provide some way forward. They approached Dr. Raghavan, and on examination, doctor felt that he can respond even though he was just an infant. So since medications could not be given to an infant directly, a very novel approach was used to give medication to the mother since she was breastfeeding the baby. So in this manner, the child was receiving the medication and through the mother, which continued for 2.5 years. After that, the child was able to consume the medication by himself. One major discovery during this phase was that his comorbidities had reduced and his heart complications had also settled down to a great extent, which was not earlier anticipated or expected at all. Another important aspect of Dr. Raghavan's treatment is that the patients should be vegetarian. This being a Muslim family, the non-veg food is very much part of their diet regime. So the family had sacrificed that very obviously for the sake of their child and had turned vegetarian. Now that the boy is grown up, he's 10 and he does want to consume non-veg food. So he has started having that and hence cannot consume the medication orally, which can hamper his development. So the oral medications have discontinued for now, but he's making great progress. He has achieved his milestones. He's functioning very well in all areas and goes to a mainstream inclusive school. He's in the 2nd standard currently and does come to the Dattatreya Rehab Center for various therapies and is responding extremely well. The parents are very much thankful to Dattatreya and Dr. Raghavan especially for having shown them this way forward, and we certainly know that he will progress even further from now. आज हम आपकी मुलाकात एक पेरेंट्स से करवाएंगे जिसका बच्चा अब्दुल को डाउन सिंड्रोम है, और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें इसकी जर्नी और इसका प्रोग्रेस। तो हम इसकी माता जी से बात करेंगे। मिसेस रहमान, नमस्ते। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसके कंडीशन के बारे में पहले कैसे पता चला? सबसे पहले हमें ये पता चला ये 3 महीने के समय में देखा नहीं, लेकिन 3 महीने के समय हमारे घर में आने के वक्त हमारे भाभी लोग बोला इसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, वो एक अच्छी तरह सांस नहीं किया है, इसलिए उसे एक अस्पताल ले जाकर एक पीडियाट्रिशियन को देखो। इसे देखने के समय डॉक्टर ने बोला वो डाउन सिंड्रोम है, इसकी ब्लड का जांच करना चाहिए। वो बोला हम रिपोर्ट आया था, वो समय वो बोला ये डाउन सिंड्रोम है। फिर वो कंफर्म हो गया। उस समय हमें बहुत दुख हुआ। आपको इसके बारे में डाउन सिंड्रोम पहले कभी सुना था? सुना नहीं था, पहले सुना था। उस समय मैंने डॉक्टर से बोला डाउन सिंड्रोम क्या मतलब क्या है। उस समय डॉक्टर ने बोला ये सादा बच्चे के जैसे नहीं होएगा, वो सादा बच्चे अपने आप सीखते हैं, वो लेट हो जाएगा। उस समय हम तो आपको शॉक लगा? बहुत शौक लगा हमें और हस्बैंड को बहुत शौक लगा। हमें हमारी फैमिली में भी फर्स्ट टाइम एक बच्चा ऐसा आ गया था। इसके उस समय वो बोला था इसका हार्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और डाउन सिंड्रोम लोगों को ऐसा होता है, उसे हार्ट की वाल्व में होल था, एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो सर्जरी करना चाहिए। वो समय हमसे बोला। क्या एज था उसका? 3 महीने समय बोला। वो समय हम 1 महीने के बाद 4 महीने में वो हॉस्पिटल भी गए। हार्ट का प्रॉब्लम सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन डाउन सिंड्रोम ऐसा ही उसका जीवन ऐसा ही होगा बोला। वो सुनने के बाद हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसलिए आगे कैसे हम आपको बहुत बड़े बच्चे को
बीमारी हो गया तो माँ के बारे में बहुत बड़ा तकलीफ है वो। हाँ, एक्चुअली एक बीमारी नहीं है, वो एक कंडीशन है जो Genetic जेनेटिक है, problem. जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम का बात है। तो वो जैसे कि वो रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, मगर आप उसका जीवन थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, उसको टाइम पे सिखाना, उसका ट्रीटमेंट, ये सब आप कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप किसके पास गए? उसके बाद हम एक डॉक्टर रामन के डॉक्टर हमारे आसपास की था, वैसे हमें मालूम नहीं था डॉक्टर के बारे में, लेकिन हमारे मुल्क से कुछ लोग बोला एक डॉक्टर है रामन के डॉक्टर है, उसके पास जाओ और उसके बाद दिखाओ, उसके पास इसके लिए ट्रीटमेंट है। डॉक्टर हमसे बोला तुम माँ है, तुम्हारी बहुत बड़ी मुश्किल होगा ये दवाई देने के लिए, लेकिन तुम तैयार हो, इसलिए तो पूछा। हमने बोला हम तैयार है। 3 महीने का था। 3 महीने, वो 4 महीने हो गया हमें आने में। अच्छा, हम तैयार है तो डॉक्टर से बोला, तो डॉक्टर उनको दवाई दिया। तो ये दवाई उसको नहीं दिया गया क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसको नहीं दिया जा सकता है, तो वो दवाई हमें दिया, आपको दिया। हमें दिया और उसको फीड करने के लिए बोला। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग से वो उसे दवाई उसको मिलेगा। अच्छा, ऐसा कितना साल? they दो 2 years, हाँ। 2.5 years। अच्छा, तब उसमें उस टाइम में आपने कुछ डिफरेंस, कुछ आपको अलग वो लगा? आगे 3 साल 3 साल पे चलना। हाँ। मगर उसका वो अच्छी तंदुरुस्ती में आ गया, अच्छा, थोड़ा हेल्थी हो गया, वो सब हमें मालूम था, इसलिए हमें ये दवाई एक दिन नहीं मिस किया, क्योंकि वो बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी था, हमें मालूम था। और इसके लिए और भी कुछ आपको करना पड़ा ट्रीटमेंट के टाइम पे, जैसे कि खाने में क्या फर्क लाया आपने? खाने में हम मांस खा रही था, वो खाए उस समय हमने मांस कुछ नहीं खाया, प्योर वेजिटेरियन। डॉक्टर बोला प्योर वेजिटेरियन को हम दवाई देगा, मांसाहारी को हम दवाई नहीं देगा, क्योंकि उसका असर नहीं होगा, इसलिए हमको मांस सब छोड़ दिया। अब्दुल के लिए तो छोड़ना पड़ेगा, मेरे बच्चे के लिए कुछ भी कर देगा। तो फिर 2.5 years के बाद उसके बाद दवाई कैसे दिया गया? उसके बाद डॉक्टर उसे वो खुद ही खुद ही दवाई उसे देने के लिए डॉक्टर बोला। अच्छा, खुद ही दवाई उसको दिया। 5 years 5 साल तक ये दवाई चालू की अपनी तरह से दवाई। और 5 साल तक आपको उसमें क्या फर्क लगा? जैसे वो चलने लगा, 3 साल में चलने लगा, वो समय मुझे बहुत हैप्पी हुआ चलने के समय। फिर उसका हार्ट का प्रॉब्लम कुछ बच्चा हो गया था, हम मक्का गया, इसके हज के उम्रा के लिए गया, हार्ट को सांस के लिए कुछ प्रॉब्लम आ गया। वो समय हम एक अस्पताल गया था, वो हम लोग बोला हार्ट सर्जरी मस्ट इनकी सर्जरी है, सर्जरी हुआ 5 साल पे इनका सर्जरी हुआ। तो डॉक्टर राघवन ने बोला कि सर्जरी डॉक्टर एक बोला था इसे हार्ट सर्जरी करना चाहिए। अच्छा, वो एक बड़ा होने के बाद करना चाहिए, छोटे के समय करना नहीं चाहिए। लेकिन ये आमदा हॉस्पिटल में हमसे बोला था ये हार्ट सर्जरी में बचने की रिस्क चांस कम है वो समय, इसलिए डॉक्टर बोला वो समय सर्जरी नहीं करना। उसको सांस लेने में तकलीफ या ऐसे कुछ और प्रॉब्लम होते थे जब 5 साल तक? कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर स्कूल का क्या किया आपने? उसके लिए कुछ स्कूल वगैरह देखा था? हम स्पेशल स्कूल में नहीं गए, दाखिल थे वो नॉर्मल स्कूल में, सब हम प्ले स्कूल में। उसका स्पीच थोड़ा कम था ना? हाँ, सादा बच्चे के लिए जैसे स्पीच नहीं किया। तो अभी वो 10 साल का है, तो अभी वो स्कूल में जाता है? स्कूल में जाता है। कौन सा क्लास में? 2 क्लास में पढ़ते हुए, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए, गवर्नमेंट स्कूल में करते हुए, नॉर्मल स्कूल। वो लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ, वो लोग अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं। और ये भी वहाँ पे कोप अप करते हैं। टीचर ने बोला हमसे, टीचर से पूछते हैं कैसा है, टीचर को वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिखा सकते हैं और वो भी समझता है। अच्छा, और अभी वो उसके क्लास में दूसरे बच्चों के साथ उसी लेवल के हिसाब से पढ़ाई होती है उसकी? उसकी हिसाब से पढ़ाई नहीं होती, थोड़ा कम पढ़ते हैं। लिखते हैं वो, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, इसलिए मगर फिर भी
दूसरे बच्चों के साथ रह के भी बहुत कुछ ऑटोमेटिकली भी सीख जाता है ना दूसरे बच्चों के साथ। आपकी जॉइंट फैमिली है तो वहाँ भी दूसरे बच्चे हैं तो उससे भी वो बहुत कुछ सीख सकता है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि ये दवाई या ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बहुत लोगों को इसके बारे में इतना मालूम नहीं है कि स्पेशल बच्चों को उसका कैसे फ़ायदा हो सकता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ है? हमें बहुत फायदा हुआ है इसकी ये बिहेवियर के ये प्रोग्रेस की बात एक कारण भी है आयुर्वेदिक हाँ। दवाई के बाद। तो अभी भी दवाई चालू है? अभी ये नॉन वेज हो गया क्योंकि अभी ये बड़ा हो गया तो उसको उसके बाकी फैमिली मेंबर क्या खाते हैं उसको फिजियोथेरेपी अलग अलग इसके लिए यहाँ रिहैब सेंटर में आते हैं ना डॉक्टर लता के, तो उससे भी उसको फायदा हो रहा है? हाँ, उससे बहुत फायदा हो रहा है। ये अच्छी तरह बोलते हैं। अच्छा, कितने साल से इधर आ रहे हैं आप? अब 1 महीने से हम यहाँ। अच्छा, 1 महीने। स्पीच थेरेपी अलग अलग इसके लिए यहाँ रिहैब सेंटर में आते हैं ना डॉक्टर लता, और उससे भी आपको फर्क लगता है? उसके टीचर्स लोगों को भी लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट है? हाँ, टीचर्स लोग भी बोलते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, इसलिए वो लोग भी स्पीकिंग थेरेपी हमें फायदा हुआ है अच्छा। अच्छी तरह। और घर पे बाकी सबके साथ भी वो एडजस्ट कर लेता है? अच्छी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। मेरे दूसरे बच्चे के भी अच्छी तरह ही हाँ। सबको हैंडल करते हैं। इसके दूसरे 2 भाई हैं ना? 2 बड़े भाई है उसके से उससे भी अच्छी तरह ही हैंडल करते हैं हम लोगों को। हाँ। सब लोगों को। अच्छा, वो लोग ने इसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है? हाँ, वो लोग अच्छी तरह इसको सपोर्ट करते हैं? मुझे अच्छी तरह एक्सपेक्ट किया है। वो भी वो लोग इसे डाउन सिंड्रोम के आंखों से नहीं देखता है। हाँ, लेवल उसको वो उसका छोटा भाई है, है। बड़े भाई है उसके से, इसलिए वो लोग हाँ। सब हमारे सब फैमिली उसको बहुत प्यार करता है इसे। वो प्यार से ही वो सबसे ज्यादा उसको फायदा हो रहा है। तो अभी आपकी जर्नी अभी तक बहुत अच्छी रही जब से आप यहाँ ट्रीटमेंट चालू किया। आप दूसरे पेरेंट्स लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जैसे क्योंकि ऐसे बहुत पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम या दूसरा कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उनको आप कुछ मैसेज बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं बोलना चाहते हैं हमको वोट ऐसे बच्चों को देते हैं तो हम वोट से थैंक यू बोलना चाहिए। ये लोग हमको हेवन देता है, वो लोगों को हम अच्छी तरह संभालना चाहिए। उसे हम अच्छी तरह बड़ा कर सबके साथ उसे इक्वल ट्रीटमेंट इक्वालिटी सबके साथ देना भी चाहता है। हाँ। मेरे मन में सोचना भी नहीं चाहता है मेरे बच्चा डाउन सिंड्रोम है। हाँ। मेरा बच्चा अच्छी बच्चा है। हाँ। वो मैं सोचता है। हाँ, अच्छा ही है, अच्छा ही है। ऐसे मैं उसे उसने आपको कितना सिखाया है ना। बाकी लोग को ये चांस नहीं मिलता है, वो लोग ये नहीं सीख सकेंगे। ये हमारे बच्चे, मेरा भी भाई है तो वो मुझे सिखाता है। तो जिनके फैमिली में वो होते हैं ये स्पेशल बच्चे, वो उन पूरी फैमिली को बदल देते हैं। तो हमको वो भगवान के लिए वो हमारे लिए गिफ्ट है। हाँ, है ना? हम भगवान से थैंक यू बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो आप सबको ये इससे बहुत प्रेरणा मिली होगी, तो हम आशा करते हैं कि आप भी निराश ना हो। अगर आपके साथ भी कोई स्पेशल बच्चे हैं या डिसेबिलिटीज़ से ग्रस्त बच्चे हैं तो ज़रूर आशावादी रहिए और ट्रीटमेंट लीजिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद।